तरह WWE ਦੀ फाइट ਹੁੰਦੀ ਆ वही पैटर्न ਹੁੰਦਾ। सेम होता है दोनों गेम, बट जो WWE है वहाँ पर हम बंदे को इंजर्ड ही करते हैं या फिर मतलब नॉकआउट करते हैं। पंच मारे जाते हैं, पंच के किन्ने पॉइंट मिलते हैं, किक मारी जाती है, किक के किन्ने पॉइंट मिलते हैं। जो पंच मारे जाते हैं फेस पे उसके 1 पॉइंट होते हैं, जो हम थाई मारते हैं चेस्ट पे उसके 2 पॉइंट होते हैं। एक थ्रो मार के ही गिरा दिए तो हम नहीं गिरे तो उसके 2 पॉइंट मिलेंगे हमें। मेजर इंजरी भी हो जाती है क्योंकि फेस किक भी अलाउड है, तो फेस के ऊपर लगती है तो मेजर इंजरी हो ही जाती है। दबाव किन्ना कुछ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 골ਡ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, 골ਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ। मम्मी भाई ने सबने सपोर्ट किया है तो फिर उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं कि मेडल तो लाना ही है क्योंकि पीछे कुछ नहीं है हमारे। ਜਿਵੇਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? हम प्रेफर करते हैं कि लड़कियां लड़कों के साथ ही फाइट करें, तभी वो अपने वेट की लड़कियों को बीट कर पाएंगी। ਲੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੁਸ਼ੂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਟਫ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੁੜਿਆ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਖਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਰਟਸ में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेखा है, मैं 18 साल की हूँ, मैं BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ? ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਇਹ? मेरे भाई, बड़े भाई है, वो गेम खेलते हैं वुशु, उनके थ्रू मैं यहाँ पे मतलब गेम में ज्वाइन की थी। 2023 में मैंने गेम को ज्वाइन किया था और मैंने और भी नेशनल खेले, उसमें मेरे ब्राउन्स 3 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर, 1 गोल्ड मेडल आया। अब मैं मॉस्को के लिए सिलेक्ट हुई थी। वहाँ पे सिलेक्शन के बाद फिर वहाँ पे मुझे मॉस्को खेलने का मौका मिला इंटरनेशनल, वहाँ पे भी मैंने गोल्ड लाया। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ? रूस के साथ हुआ था फाइनल मुकाबला। ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ? 3-4 ऊपर थे मेरे पॉइंट। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? हाँ जी सर। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਖੇਡ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਗਨ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? मॉर्निंग लेग पे होती है 2 घंटे और इवनिंग होती है 3:30 से 7 बजे तक या 7 बजे 7:30 तक होती है। इतने घंटे हमारी प्रैक्टिस होती है दोनों टाइम। ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ 7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ। हाँ जी सर। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕ ਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ? रनिंग वगैरह, फिटनेस वगैरह सब कुछ कराए जाते हैं और स्टेमिना वगैरह सब कुछ वर्कआउट वहाँ होता है। जो टेक्निक वगैरह होता है वो हमारे एकेडमी में होता है शाम को। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਤਕਨੀਕ ਦੱਸੋ, ਖੇਡੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ WWE ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੰਤਰ ਕੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? सर सेम होता है दोनों गेम, पर उसमें ये है कि हम वुशु में हम सेफ्टी करते हैं, अपना चेस्ट गार्ड वगैरह ये सब डालते हैं, पर उसमें हम कोई सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं डालते। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ? हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितु है और मैं चंडीगढ़ पुलिस में एज ए कांस्टेबल जॉब करती हूँ और मैं रेखा की सीनियर हूँ। हम संदीप मलिक जो हमारे कोच हैं उनके अंडर ही हम ट्रेनिंग लेते हैं। मॉर्निंग हमारी फिटनेस की ट्रेनिंग लगभग सभी की लेग पर ही होती है, जिसमें हम सिर्फ फिटनेस करते हैं, और शाम को हम यहाँ 29 में और बाल निकेतन स्कूल में ही हमारी एकेडमी है, जहाँ पर हम टेक्निकल जितना भी हमारा काम है वो करते हैं मैट के ऊपर। तो लगभग जैसा कि आपने पूछा कि WWE फाइट जो होती है और वुशु, इनमें क्या सिमिलर है, तो हमारा सिर्फ ज़्यादातर इक्विपमेंट का ही होता है कि हम यहाँ पर थोड़ी सेफ्टी रखते हैं और वहाँ पर सेफ्टी नहीं रखी जाती, कि जैसे हमने चेस्ट गार्ड है, हेड गार्ड है, ये डाला हुआ है।
बाकी लगभग सेम ही पैटर्न है सर इनका। और इसमें हम पॉइंटों के ऊपर खेलते हैं। जैसे हम थाई के ऊपर अटैक ले रहे हैं तो हमें 1 नंबर दिया जा रहा है। हम चेस्ट के ऊपर अटैक ले रहे हैं, फेस के ऊपर अटैक ले रहे हैं तो वहाँ पर हमें 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं। पंच है वहाँ पर 1 पॉइंट दिया जा रहा है। ये हमारा पॉइंटों का गेम है। बट जो WW है वहाँ पर हम बंदे को इंजर्ड ही करते हैं या फिर मतलब नॉकआउट करते हैं। वहाँ पर पॉइंटों का नहीं है। ये हमारा एक टेक्निकल गेम है जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट खेलते हैं। बट ਹਾਂ ਰੇਖਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਟਫ ਗੇਮ ਆ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? इंजरी में 90% होता है, 95%। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? हाँ जी सर। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? कवर सर हम घर पे मतलब रिलैक्स वगैरह करके हम कवर कर सकते हैं इसको। आइसिंग वगैरह आइस पैक से कर सकते हैं। बाकी हम डाइट लेकर भी रिकवर कर सकते हैं इसको। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕਨੀਕ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਪੰਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਚ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੱਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮਝਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼। जो पंच मारे जाते हैं फेस पे उसके 1 पॉइंट होते हैं। जो हम थाई मारते हैं चेस्ट पे उसके 2 पॉइंट होते हैं। चेस्ट के 2 पॉइंट होते हैं और थाई पे मारे जाते हैं उसके 1 पॉइंट होते हैं। और थ्रो के अगर दोनों एक साथ गिरते हैं तो उसके 1 पॉइंट होते हैं। और हमने सीधा मतलब बंदे को एक थ्रो मार के ही गिरा दिए तो हम नहीं गिरे तो उसके 2 पॉइंट मिलेंगे हमें। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? बिल्कुल 90% चांस है सर कि चोट लगती ही रहती है प्लेयर को। बिल्कुल सर, हड्डी टूटती है और मेजर इंजरी भी हो जाती है क्योंकि फेस किक भी अलाउड है तो फेस के ऊपर लगती है तो मेजर इंजरी हो ही जाती है। तो उसके लिए हम अपने जो नॉर्मल है शिकाई वगैरह करते हैं आइसिंग से या फिर हॉट पैड से। बाकी रिलैक्सेशन है सर, उसी से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हमें रेस्ट करना पड़ता है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। हाँ जी सर, एशियन के लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ, पूरी तैयारी। सुबह शाम प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे एशियन भी खेलना है। एशियन में भी मुझे गोल्ड मेडल लाना है अपने इंडिया के लिए। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ? हाँ जी सर, चंडीगढ़ पुलिस में ही मुझे भी भर्ती होना है। ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੰਮਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? मम्मी हाउस वाइफ है, पापा गांव में खेती का काम करते हैं और भाई सपोर्ट करते हैं गेम वगैरह में खेलने के लिए। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ पहुँचे? ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਇਆ? बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अभी बीच में हमारी कॉलोनी टूट गई थी। पहले मैं इंडस्ट्रिया फेस 1 में रहती थी। वहाँ पे हमारी कॉलोनी 7-8 महीने हो गए कि टूट गई थी। वहाँ पे शुरू से मेरा जन्म वहीं हुआ था, संजय कॉलोनी में। वहाँ पे मुझे 17 साल हो गए थे। अभी हमने जब वहाँ से कॉलोनी टूट गई तो हम मक्खन माजरा जाके रहने लगी। तो गेम के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आई, कभी एकेडमी नहीं आना और बाकी सब। फिर उसके बाद जो गैप हो जाता है उसे कैसे आके एकेडमी में रिकवर वगैरह करना गेम को, फिर सब कुछ में दिक्कत आ जाती है। अगर एकेडमी ना आए और छूट जाता है 1-2 दिन का प्रैक्टिस वगैरह तो उसमें कैसे हम अपने आप को मजबूत बनाए खेलने के लिए। अगर छूट जाती है तो कोई बात नहीं, कोई मुसीबत होती है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, पर जब हमें टाइम मिले तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए रेगुलर पूरा। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ? मम्मी पापा और सबसे ज़्यादा भाई का सपोर्ट था। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਫਰਕ? सर अगर हम फॉरेनर कंट्री की बात करें मार्शल आर्ट में और हमारी कंट्री का कंपैरिजन करें तो दिन रात का फ़र्क है। हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, ना हमारे जो बैकग्राउंड है, हमारे बच्चों का बैकग्राउंड है वो इतना उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर डाइट दे सके, प्रॉपर फैसिलिटी। अब जैसे रेखा ने बताया कि इनकी संजय कॉलोनी टूट गई थी, हमने खुद देखा है कि इसने कितना स्ट्रगल किया है। अभी मक्खन माजरा ये रहते हैं, वहाँ से लेक पर आना, तो सुबह सुबह इनका शायद जूनियर का नेशनल चैम्पियनशिप थी, उस टाइम की बात है, सुबह लेक पर मैं ही लेकर जाती थी इनको। बट ये था कि अब इनके भाई हैं गामा, वो भी गेम करते हैं, तो वो सुबह इसको छोड़ के जाना लेक पर,
वापस लेके जाना, काफ़ी स्ट्रगल किया है, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रगल ही बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए। एक फॉरेन में है, वहाँ पे बच्चों को स्कूल में ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, गेम की, इक्विपमेंट की, और जो भी अपना इक्विपमेंट हम डालते हैं, डाइट वगैरह सब कुछ उनको स्कूल में या फिर गवर्नमेंट से करवाया जाता है प्रोवाइड। बट हमारे यहाँ इस चीज़ की काफ़ी दिक्कत है बच्चों को। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਖਾ ਗਲਵਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਚ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? अगर सामने का अटैक आ रहा है तो हम अपने ग्लव से हम अपना बचाव कर सकते हैं। ਜੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ फेस पे कोई अटैक ले रहा है तो, या थाई पे मार रहा है या चेस्ट पे मार रहा है, तो अपने ग्लव से हम अपनी पूरी सेफ्टी कर सकते हैं। ਤਾਂ ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਪੂਰਾ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਣਾ ਪੜਤਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਪੂਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ पूरा ਚੁਸਤੀ ध्यान देना पड़ता है कि सामने वाले का अटैक कब आ जाए, कुछ नहीं पता होता, तो हमें अपने पूरा ध्यान देना चाहिए गेम पर कि अटैक कब आ रहा है, पूरी सेफ्टी के साथ खेलना चाहिए हमें। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਗਲਵਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਸਟੂਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ WWE ਦੀ ਫਾਈਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਟਰਨ ਸੇਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚ ਮਾਰਨਾ, ਕਿੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। उसमें ये है सर, जैसे हमने खेलना है पॉइंट टू पॉइंट, कि हमारे अगर हम पॉइंट चेस्ट के ऊपर अटैक ले रहे हैं तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। बट हमें इसको ग्लव से बचाना भी है, कि हम पीछे हट गए, हमने थोड़ा सेफ्टी कर लिया या अपना ग्लव्स रख लिया तो हमारे पॉइंट बच गए। या फिर हमारे फेस के ऊपर हम अटैक ले रहे हैं, हमने अपना जो ग्लव्स है सीधा फेस के ऊपर कर लिया तो हम बच जाएंगे। हम पॉइंट ले रहे हैं अपने पंच से तो वहाँ पर हमें पॉइंट भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ग्लव्स हैं, हमारा चेस्ट गार्ड है, ये हमें काफ़ी सेफ्टी देता है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤੋਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा टफ है। जब हमने अभी छोटे बच्चों को जैसे शुरू करवाया है तो हमारे बच्चों में स्ट्रेंथ ही नहीं होती, और लड़कियों में जैसे लड़कों के कंपैरिजन में वैसे स्ट्रेंथ कम होती है। लड़कों में नेचुरल स्ट्रेंथ है लेकिन लड़कियों में वो डालनी पड़ती है, और वो डालने के लिए देखिए लड़के अगर प्रैक्टिस 2 घंटे कर रहे हैं तो हमें लड़कियों को 4 घंटे प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, उन्हें डाइट एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें फ़ाइट भी लड़कों के साथ ही एकेडमी में करवानी है। इनकी ट्रेनिंग जो है लड़कों के साथ ही चलती है, तब जाके ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? बहुत ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि लड़कियां लड़कों के साथ ही फाइट करें, तभी वो अपने वेट की लड़कियों को बीट कर पाएंगी। क्योंकि जैसे ही हम लड़कों की स्ट्रेंथ के अगर हम यहाँ पर उन्हें नहीं हरा सकते या फिर हम नहीं उनको गिरा सकते, बट हम अपने वेट की लड़कियों को ज़रूर गिरा पाएंगे। क्योंकि ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? जी सर, क्योंकि स्पोर्ट्स में मेनली हम ये नहीं देखते कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि हम दोनों को ये, अगर लड़की है कम वेट की है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लड़का है कम वेट का है, हैवी वेट का है, तो अगर हैवी वेट का तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कम वेट का है तो उसमें स्पीड ज़्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि छोटे वेट को बड़े वेट के साथ प्रैक्टिस करवाई जाए, एक के पास स्ट्रेंथ है, एक के पास स्पीड है, तो दोनों जब मिक्सअप होएंगी तो दोनों को फ़ायदा होएगा उस चीज़ का। अब रेखा है, ये लड़कों के साथ प्रैक्टिस कर रही है तो इसका कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा ही होता है कि ये अपने वेट की लड़कियों को आराम से गिरा पाएगी या फिर उनसे पॉइंट निकाल पाएगी। अब जैसे मैं और रेखा भी प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा वेट इससे काफ़ी ज़्यादा है, 10 से 15 किलो मेरा वेट इससे ज़्यादा है, तो ये मेरे साथ प्रैक्टिस कर रही है तो स्ट्रेंथ मेरे अंदर नॉर्मल है कि ज़्यादा ही है। तो इसका बेनिफिट इसको ये होगा कि ये जो 60 या 65 केजी में खेलती है और मैं जो 70 से 80 केजी में खेल रही हूँ, तो उसका ये फ़ायदा है कि ये अपने वेट की लड़कियों को आराम से बीट कर सकती है। ਰੇਖਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 골ਡ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, 골ਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਘਰ? सर, खेलने के लिए जा रखे हैं तो मेडल तो लाना ही है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की है और पीछे सब कुछ देखना होता है, क्योंकि मम्मी भाई ने सबने सपोर्ट किया है, तो फिर उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं कि मेडल तो लाना ही है, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है हमारे। मेडल लाएंगे तभी आगे हमारा नाम होगा, आगे हर चीज़ मिलेगी। अगर अभी हम नहीं खेलेंगे, मेडल नहीं लाएंगे तो पीछे के पीछे रह जाएंगे, कोई स्कोप नहीं रहेगा हमारा। ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਜਨੂਨ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ? ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? गेम ही है सर मेरा।
ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? नो सर। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੇਮ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ? नहीं सर, संगीत वगैरह नहीं सुनती, बस माँ दिमाग शांत करके बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ उस गलती को कि मैंने क्या किया, चाहे मैं किस लिए हारी, और मेडल भी आया तो किस लिए मैंने क्या किया, कि कितनी प्रैक्टिस की कि मेरा मेडल आया, ये सब का सोचती हूँ। ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ? BA फर्स्ट ईयर। ਫਸਟ ਈਅਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਫ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਰਾबर ਰੱਖਣਾ? टफ तो होता है सर, क्योंकि पढ़ाई भी करना और गेम भी करना एक साथ, फिर पेपर वगैरह भी आ जाते हैं, फिर प्रैक्टिस भी सुबह शाम करनी, और कॉलेज वगैरह भी जाना, प्रैक्टिकल वगैरह देना, टफ तो है सर। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ 골ਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇਡੇ? सर मैंने 2019 में चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन की थी। तो हमारे जस्ट आने के बाद कोरोना शुरू हो गया था, तो हम लगातार ड्यूटियों में बिजी रहे। उसके बाद मैं संदीप सर से मिली, जो हमारे कोच हैं, तो इन्होंने मेरी प्रैक्टिस करवाई। तो एक मार्शल आर्ट का ही गेम है सिलाट, और वुसु मैंने दोनों ही खेलने शुरू किए। तो उसके बाद मैंने सिलाट की 2022 की नेशनल चैम्पियनशिप थी श्रीनगर, मैंने वहाँ शुरू किया खेलना, तो वहाँ पर मेरा गोल्ड मेडल आया सबसे पहले। उसके बाद 23 में हुई, 23 में मेरा गोल्ड मेडल था सिलाट में ही। नेशनल गेम्स हुए गोवा 2023 में ही, उसके बाद वहाँ पर गोल्ड मेडल आया। उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप हुई दुबई में, वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके बाद सर बीच में हम इलेक्शन ड्यूटी वगैरह चले गए थे, ऑल इंडिया पुलिस में खेल नहीं पाई, लेकिन 2025 में दोबारा ऑल इंडिया पुलिस हुई, 10th ऑल इंडिया पुलिस गेम, वहाँ पर वुसु और सिलाट दोनों में मेरे मेडल आए हैं। ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ, ਕਦੋਂ ਮੈਡਮ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर सुबह हम लोग लेक पर चले जाते हैं। जी सर, क्योंकि ड्यूटी का अपना एक टाइम है कि वो हम 8 बजे 9 बजे या 10 बजे जा रहे हैं, तो सुबह हम जल्दी लेक पर चले जाते हैं। शाम को हम अपनी ड्यूटी ऑफ करने के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आते हैं। ड्यूटी ऑफ जैसे ही हमारी जिस टाइम भी ड्यूटी ऑफ होती है, हम डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ना भी आ पाएँ कि इमरजेंसी ड्यूटी है, तो उस दिन चलो मिस भी हो जाता है, बट हम कोशिश करते हैं कि हर रोज़ प्रैक्टिस बच्चों की भी कराएं और खुद की भी करें। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सर ये है कि मेन तो ये हमारा कि हम ऑल इंडिया पुलिस भी आने वाला है, नेशनल भी आने वाला है, कि हम अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देते हैं। बट छोटे बच्चे भी काफ़ी आते हैं, मतलब 15 से 20 बच्चों की स्ट्रेंथ है, छोटे बच्चे हैं जो, वो भी आते हैं। बट ये है कि जैसे रेखा है, तो ये छोटे बच्चों को साथ में ट्रेंड करती है। हमारे पास एक और लड़की है जिसका अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल आया है, रोशनी, तो वो है। ज़्यादातर तो बच्चों को वही देखते हैं, बट ये है कि जैसे हमें प्रॉपर टाइम तो नहीं लग पाता कि हम बच्चों को ट्रेंड करें ड्यूटी की वजह से, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि हेल्प करने की। ਰੇਖਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ, ਵੁਸੂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਫਿਊਚਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? मेहनत करेंगे तो सर हम जहाँ तक हम सोचे उससे ऊपर तक जा सकते हैं। पर ये है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं और हमने सोचा है कि एशियन गेम भी खेलना है, वर्ल्ड कप भी खेलना है, हम उस हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस के बाद हमें हर चीज़ का देखना पड़ेगा, स्टडी भी देखनी पड़ेगी, गेम भी देखना पड़ेगा, बाकी हर चीज़ का ध्यान रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुसीबतें आती हैं, पर मुसीबतों से लड़ना चाहिए हमें। ਜੇਕਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਣੀ ਆ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਵੱਖਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਗੇਮ? अगर हमें एशियन और वर्ल्ड कप खेलना है तो हमें डबल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुबह शाम जितना हम करते हैं उससे डबल करना पड़ेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜੇਕਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ 골ਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? सर सबसे पहले तो ये है कि बच्चे का पूरा ध्यान अपने गेम के ऊपर हो। गेम के साथ रेस्ट, रिकवरी, अपनी डाइट, ये सभी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर ये है कि चलो ठीक है बच्चे स्टडी भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है,
कि लेकिन उनका सबसे मेन फोकस है अपने दोनों टाइम की प्रैक्टिस प्लस डाइट प्लस रेस्ट रिकवरी। अगर उनको सिर्फ अब गेम ही करना है तो उनका सबसे मेन फोकस अपना इन 3 या 4 चीज़ों के ऊपर ही होना चाहिए। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੁਟੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਰੁਟੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ? सुबह प्रैक्टिस के बाद फिर घर पे जाके डाइट वगैरह लेना, डाइट के बाद फिर कॉलेज भी जाना होता है। तो कॉलेज 3-4 घंटे के लिए जाते हैं, जो प्रैक्टिकल वगैरह होता है, जो स्टडी वगैरह पढ़ाते हैं, उसको पढ़ने के बाद फिर शाम को दोपहर में घर आने के बाद फिर उसके बाद फिर शाम को एकेडमी आना पड़ता है। ਡਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? हाँ जी सर, डाइट की प्रॉब्लम होती है पर कर लेते हैं जैसे तैसे करके। ਡਾਈਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है सर। हम ये सोचते हैं अगर हमें 1 या 2 टूर्नामेंट निकालना है तो चलो कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं, बट अगर प्लेयर को लंबा चलना है तो उसके लिए डाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट और वो भी रूटीन में। और जो लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए समस्या बहुत ज़्यादा है। कई बार बच्चों का ये होता है वेट नहीं बढ़ रहा होता और वेट बढ़ाने के लिए उनको एक्स्ट्रा जैसे दूध या फिर बनाना ये सब देना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो हम कोशिश करते हैं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो एकेडमी की तरफ से हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ਕਿ ਹੁਣ ਵੁਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਨੇ। बिल्कुल सर, अभी जैसे सोशल मीडिया की वजह से इस गेम का मार्शल आर्ट में वुशु गेम है या फिर और भी इसके पार्ट हैं जैसे ताइक्वांडो है, किक बॉक्सिंग है। पहले इनका हमें खुद भी नहीं पता था, बट सोशल मीडिया से लगाओ या फिर जैसे भी है बाहर आने की वजह से, अवेयरनेस की वजह से, और स्पेशली वुशु का अभी बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी है और इस गेम का फ्यूचर भी है। क्योंकि ITBP, SSB, चंडीगढ़ पुलिस, जहाँ पर भी देखा जाए इनकम टैक्स हर जगह पे भर्ती निकल रही है स्पेशल वुशु की, और प्लेयर को लिया भी जा रहा है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੇਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ? सर सबसे मेन तो जब हमने शुरू किया था सेल्फ डिफेंस के लिए ही शुरू किया था। रेखा खुद भी स्कूलों में जैसे चंडीगढ़ में सेल्फ डिफेंस के लिए क्लासेस होती हैं तो खुद रेखा भी सेल्फ डिफेंस की क्लास देती है। तो ये तो हमारा चंडीगढ़ पुलिस का भी प्रोग्राम चलता है स्कूलों में, एक शिवम टीम है चंडीगढ़ पुलिस की, तो वो लड़कियों को सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में क्लासेस देती है सेल्फ डिफेंस की, और उसमें यही सिखाया जाता है। और जैसे हम अभी अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, गेम के लिए कर रहे हैं, ये मतलब ये लगाइए आप सबसे ज़्यादा बेस्ट है हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए। क्योंकि सेल्फ डिफेंस ही ये है कि हम लड़कों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं को हम मार रहे हैं, उनसे मार खा रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर हमारे साथ कल को कोई इंसिडेंस हो जाए तो हमें कैसे बचना है, कैसे मारना है, और हम कहाँ मार सकते हैं। ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 50-60 लड़कियों को देती हूँ। 2 स्कूल हैं, मनी महाजरा एक और एक विकास नगर। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 30-40 को 1 घंटे की ट्रेनिंग दे दिए, फिर गैप लेके 1 घंटे की, फिर 30-40 बच्चों को फिर दोबारा ट्रेनिंग दे दिए। ਬਿਲਕੁਲ। ਰੇਖਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? 2 राउंड लगते हैं सर, और 2 मिनट के होते हैं, 2-2.5 मिनट के होते हैं। अगर बंदा दोनों के पॉइंट बराबर हैं, 1-1 राउंड हो चुके हैं और दोनों के पॉइंट स्कोर दोनों के बराबर है, तो तीसरा राउंड लगता है। तीसरे में ये देखा जाता है कि अब किसने ज़्यादा पॉइंट निकाले, उस हिसाब से जिताया जाता है। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ? सर हमारे कोच हैं संदीप मलिक, जो स्पेशली हमारी ट्रेनिंग में हम प्रेजेंट रहते हैं, हमें ट्रेनिंग करवाते हैं। और उसके साथ साथ ही चंडीगढ़ वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हमारे सुदर्शन सर, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है और हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। जैसे हम बाहर चैम्पियनशिप के लिए जाते हैं तो वो हमारे साथ रहते हैं और बच्चों की काफ़ी हेल्प करते हैं। तो रेखा की ओर से संदीप सर और सुदर्शन सर दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
ਤਾਂ ਰੇਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਰੇਖਾ ਦੇ ਕੋਚ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੇਖਾ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਰਸੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਟਫ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।